Assalamualaikum class, hope you are doing well. So in this lecture, we will continue off with the graph algorithms. And you already know about graphs. It is a common data structure and it consists of finite set of nodes, or you can say vertices. And each of them are connected by a set of edges. So and from these graphs, we will create subgraphs, which we'll be calling as the spanning trees. And from that spanning tree, we will create the MSTs. We will come up with the MSTs, which are the minimum spanning trees. और उसके लिए हम दो algorithms को देखेंगे. So let's continue off it. So there are basically two types of graphs. One is directed graph and other is the undirected graph. In directed graph, the edges have direction. It means that the edges go from one vertex to the another, not the other way around. So in the undirected graph, the edges have no direction. So here we'll be learning how to create the minimum spanning trees. So to create that, you should know what are the spanning trees. So if we have n directed graph, we will come up with the spanning tree, which is the subgraph of that graph, and we will create a tree. And tree की जो properties हैं वो क्या हैं कि all the vertices should be connected. Okay. The second one is that it is acyclic. So here in the image, you can see that acyclic means that there exists a loop. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि not acyclic का मतलब क्या है कि there are cycles, there are loops between the vertices. अब हर vertex पे पहुंचने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे edges मौजूद हैं और indirect edges भी मौजूद हैं. So here it is getting cycles. तो acyclic का मतलब क्या है, with no cycles. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे vertices आपस में connected हैं और नीचे भी आप देखो तो वो भी कनेक्टेड है. नॉट कनेक्टेड मतलब क्या है कि वर्टिसेस आपने लेफ्ट कर दिए, मतलब कि देयर इज नो एज टू टुवर्ड्स देम कि आप इंडायरेक्टली भी नहीं पहुंच सकते. सो वी हैव टू कम अप विद कनेक्ट ग्राफ एंड इट शुड बी एसाइक्लिक, मतलब कि देयर शुड बी नो लूप्स. ओके, तो वो जो ट्री होगा हमारे पास कौन सा होगा, स्पैनिंग ट्री. So we will be creating the spanning tree from the undirected graph. अब यहाँ पे ग्राफ मौजूद है, अब उसके अगेंस्ट आप देख रहे हो कि कितने सारे स्पैनिंग ट्रीज यहाँ पे बन रहे हैं. सो इट इज नॉट यूनिक. यू कैन नॉट कम विद वन स्पैनिंग ट्री एंड से दैट दिस इज द ओनली स्पैनिंग ट्री आई कैन कम अप विद. सो अब यहाँ पे देखो कि इससे मल्टीपल भी हो सकते हैं. यहाँ पे 4 गिवन है. अब पहली प्रॉपर्टी क्या थी स्पैनिंग ट्री के ऑल द वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड. And secondly is that there should be no cycles, मतलब कि acyclic हो, undirected graph हो, और दूसरा क्या है कि vertices आपस में connected हो. तो यहाँ पे हमारे पास multiple ways हैं spanning trees बनाने के. हमने क्या करना है, you have to come up with a minimum spanning tree. अब minimum spanning tree create करने के लिए आपके पास जो edges हैं उसके against weight होंगे, right? So we have to come up with those edges which has the minimum weight, ताकि overall जो हमारे पास cost आई है या overall जो sum आ रहा है weights का, जो edges connect हमने किए हैं with all the vertices, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, minimum आना चाहिए. Okay. So in order to find the minimum spanning tree, there will be an undirected graph and all the edges in the undirected graph will have a positive weight assigned to them. So from there we will come up with the minimum spanning tree. और वो क्या है, it is a spanning tree whose sum of all the weights of all its edges is less than all other possible spanning trees of that graph. Okay, तो हम उसको क्या कहेंगे, minimum cost spanning tree या फिर minimum spanning tree कह सकते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के spanning trees create हो रहे हैं. अब इसमें से हम अगर हम weight find करें, मतलब कि overall cost find करें इन spanning trees की, तो पहले जो हमारा सब ग्राफ बन रहा है तो उसमें अगर आप एडअप करें 4, 8, 7, 2 जो भी एजेस हमने कनेक्ट किए हैं बाकी वर्टिसेस के साथ, तो ओवरऑल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है 37. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर स्पैनिंग ट्री. अब इसमें जो एजेस की वेट हैं अगर हम उनको एडअप करें तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ रही है 42. तो इसमें जो एमएसटी मेरे पास कौन सी बन रही है वो कौन सी है, द लेफ्ट वन, जो कि मेरे पास क्या आ रही है ओवर कॉस्ट 37. सो हम यहाँ पे दो एल्बम्स पढ़ेंगे जिसमें से हम क्रिएट करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री. और ये चीज़ हमने देख ली कि हमारे पास इनिशियल लेवल पे हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है और दूसरा कि हर वेट जो है वो असाइन हुआ है आपके एजेस के साथ, मतलब कि पॉजिटिव वेटेड आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, राइट.
So the concept of this minimum cost spanning tree is applied in multiple applications. मतलब कि हमारे पास traveling salesman problem है जो कि एक NP problem है, and we can design electronic circuits, we can design efficient networks and come up with efficient routing algorithms. तो इसके बहुत सारी applications हैं. और यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेके चलेंगे वो हम लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक टेलीकॉम कंपनी ने टेलीफोन लाइंस जो फोन लाइंस हैं वो उन्होंने यूज़ करनी है और सारे जो हमारे पास नोड्स हैं नोड्स को हम कंसिडर करेंगे एज हाउसेस और हर हाउस को अपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए ओवरऑल. तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्मॉल टाउन है and there's a set of houses and we have a set of cables and the cable will connect only two nodes जो कि हमारे पास यहाँ पे house है and a cable connecting houses UV has cost W of UV. So here we using UV as the edge. ठीक है हम लिंक शो कर रहे हैं और वेट शो करने के लिए हम W का सिंबल यूज कर रहे हैं इसके साथ. तो गोल हमारे पास क्या है? We have to come up with enough cables, not more, such that everyone stay connected. जो कि मेरी प्रॉपर्टी थी. और दूसरा क्या है? टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब कि हमने एक MST क्रिएट करनी है, राइट? सो हियर इनिशियली वी हैव अ कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. सो हमने जो है वेट असाइन किया है विद अलोंग ऑल द एजेस और वो सारे क्या हैं एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं. सो वी हैव टू कम अप विद द ट्री जिसमें वो एजेस हैं सच दैट द टी जो हमारे पास ट्री है कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस और जो हमारे पास टोटल वेट आ रहा है वो क्या है मिनिमाइज्ड हो. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज क्या है MST क्रिएट करने की कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है यूनिक नहीं है. कौन से केस में? जब हमारे पास सेम वेट असाइन हुआ है तो उसके लिए आप देखो कि 1 तो हमें पता है कि हमारे पास मिनिमम वेट आ रहा है, हम तो उसको इंक्लूड करेंगे. 1 के बाद जो मिनिमम वेट आ रहा है मेरे पास वो क्या है 2. तो 2 की मेरे पास दो चॉइसेस हैं, either choose the upper one or choose the lower left one. So here we cannot say कि MST एक unique होगा end result. It all depends on the weight of the edges. So MST should have no cycles. आपने इस चीज का ख्याल रखना है while creating the MST कि there should be no cycles. And we can take out an edge of a cycle and still have the vertex connected by reducing the cost, right? और the number of edges होंगी MST में वो 1 less than the vertices होंगे. अब यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास 3 vertices हैं तो टोटल edges आपको कितनी चाहिए, मिनिमम edges कितनी चाहिए होंगी इन 3 को कनेक्ट करने के लिए, जिन्हें मेरे पास क्या आ रही है 2. ठीक है. 3 होंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा साइकिल क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे जो एजेस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 1 लेस द वर्टिसेस. ओके. तो ये एक हिंट है जब आप MST क्रिएट कर रहे होते हैं. तो हमारे पास दो सेट्स क्रिएट हो रहेंगे, एक जिसमें हमने MST की वर्टिसेस का रिकॉर्ड रखना है और दूसरा जो कि हमने अभी इनको इंक्लूड नहीं किया. तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जब तक कि हमारे MST में सारे वर्टिसेस नहीं आ रहे थे तब तक हमने स्टॉप नहीं करना. और एजेस हमारे पास कितनी हम चाहिए देते 1 लेस देन द वर्टिसेस. तो we have to grow a set A of edges. Initially जो हमारे पास क्या है empty and incrementally add edges to A such that they would belong to an MST. Okay. तो आइडिया क्या है we will add only the safe edges और safe edges हमारे पास इस केस में क्या है the minimum weighted जो हमारे पास edges है. ठीक है. तो आइडिया में उसने पहले ही कह दिया कि हमारे पास सेफ एजेस होंगी, मतलब कि ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम है. और ग्रीडी एल्गोरिथम में क्या होता है इट ऑलवेज कम अप विद द यू कैन से द चॉइस एज दैट सीम्स टू बी द बेस्ट एट दैट मोमेंट. ओके. मतलब कि वो फाइंड करता है कि ऑप्टिमल मेरे पास चॉइस क्या है और उसको ही चूज करते करते वो क्या करेगा एक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है. ओके. So the generic MST algorithm we have is that we have a set A जिसमें हम edges का रिकॉर्ड रखेंगे जो कि इनिशियल हमारे पास क्या है empty and we have a loop where while A is not a spanning tree. Okay, do find an edge UV that is safe for the A. और जहाँ पे वो फाइंड करता है सेफ एज को तो वो उस सेट में उसको क्या कर देता है यूनियन लेके उसमें एड अप कर रहा है और एंड में रिटर्न कर दिया उस A को. ओके. तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम है इसमें क्या है द एजेस
is set A always form a single tree. ठीक है, इसमें इसका कंसेप्ट ये है कि उसने स्टार्ट करना है फ्रॉम द आर्बिट्रेरी रूट, और वो कोई भी हो सकता है, हम कोई भी वर्टिस को पकड़ेंगे और उसको रूट लेके आगे फर्दर उसी ही में जो ट्री होगा उसको एक्सपैंड करते जाएंगे. ठीक है, सो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल ट्री. और हर स्टेप पे वो क्या करेगा, फाइंड अ लाइट एज, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम है तो वो हर स्टेप पे जाके वो देखेगा कि सबसे मिनिमम वेटेड जो एज है उसको मैंने चूज करना है. देन इट विल ऐड दिस एज टू द ए जो हम ट्री क्रिएट करें एंड रिपीट अनटिल द ट्री स्पैन्स ऑल द वर्टिसेस. ओके, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो हमारे पास सारे वर्टिसेस का जो हमारे पास सेट है वो क्रिएट होना चाहिए और एजेस भी हमारे पास कौन सी चाहिए जो मिनिमम हमने फाइंड किए हैं. ठीक है, तो मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि हम लाइट एजेस को कैसे क्विकली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हम प्रायोरिटी क्यू यूज करें. अब प्रायोरिटी क्यू में हमारे पास सारे वो नोड्स होंगे जिनको हमने अभी डिस्कवर करना है, और वी हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर हम एमएसटी के नोड्स एडअप करते जा रहे हैं जो कि हमने डिस्कवर कर लिए हैं. और यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्या है कि हम की असाइन करेंगे विद एवरी वर्टेक्स. और की क्या होगा, मिनिमम वेट ऑफ एनी एज कनेक्टिंग एनी वर्टेक्स टू वी. ठीक है, तो एट द टाइम जो हमारे पास सेट बन रहा है उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम वेटेड जो एजेस हैं इसके साथ जो कनेक्टेड है वो कौन सी है. उसमें से जो मिनिमम होगी हम उसको क्या करेंगे, वो जो वेट होगा एस की असाइन कर देंगे उस वर्टेक्स की. ठीक है, कि इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम वेट यही है, राइट. So after adding a new node to V, we update the weights of all the nodes adjacent to it. ठीक है, मतलब फर्दर जो इसके आगे फर्दर एडजस्ट जा रही हैं तो हम जो इसके एडजेसेंट नोड्स होंगे उनके साथ हम की असाइन कर देंगे. मतलब ए को इनिशियली हमने एज रूट नोड कंसीडर किया था, मतलब कि अभी इनिशियली मेरे पास वी में ए पड़ा हुआ है तो ए के फर्दर मेरे पास दो एजेस जा रही हैं. इसका एक वेट क्या है मेरे पास 4 और दूसरा क्या है 8. तो की ऑफ बी मेरे पास क्या बन रही है 4 एंड द की ऑफ एच क्या बन रहा है मेरे पास 8. और बाकी जो हमने अभी डिस्कवर करना है बाकी वर्टिसेस को, उधर मेरे पास जो कीज हैं वो मेरे पास क्या है इन्फिनिट है, मतलब कि अभी हमने उनको डिस्कवर नहीं किया. अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस आती है कि हम 4 वाली एज को चूज करते हैं या 8 वाले एज को चूज करते हैं. ठीक है, तो वो आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं विद द प्रोसीजर. सो फॉर द प्रिंस एल्गोरिथम आपने रूट नोड पहले आर्बिट्रेरली चूज करना है. यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं ए को, और ए का हमने पहले स्टेप देख लिया हुआ है. ए से फर्दर भी हमने आगे ये डिस्कवर नहीं किया, तो ए तक पहुंचने के लिए जो मेरे पास कॉस्ट आई थी वो क्या है 0. और बाकी वर्टिसेस को भी हमने क्या किया डिस्कवर नहीं किया, तो उधर हमारे पास कीज क्या होंगी इन्फिनिट. ठीक है, वी डोंट नो दैम. तो वी ए में अभी मेरे पास नीचे क्या पड़ा हुआ है ए, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया बी को चूज करेंगे क्योंकि मेरे पास क्या था मिनिमम वेटेड एज थी ए बी 4 जो कि मेरे पास आ गया है, और वी के जो सेट था हमारे अंदर उसको अपडेट कर दिया. मतलब अब मेरे पास क्या है ए एंड बी को हमने चूज कर लिया डिस्कवर कर लिया. अब बी से फर्दर जो एजेस जा रही हैं वो कौन सी हैं, बी सी जिसका वेट है 8, बी एच जिसका वेट है 11 एंड ए एच जो कि वेट है मेरे पास 8. अब यहाँ पे जो मिनिमम वेटेड एच था एच तक पहुंचने के लिए वो मेरे पास क्या था 8, तो हम उसको 11 के साथ अपडेट नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम वेटेड है, तो 8 ही आगे फर्दर यूज करेंगे. और बी से सी तक पहुंचने के लिए एक ही एज है तो वो क्या है 8. तो सी की जो होगी उसको हम अपडेट, तो सी की अपडेट की है तो यहाँ पे 8 आ रहे हैं और एच को हमने क्या किया है 8 ही रखा है. ठीक है, तो मतलब बी एच की जो एज है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे. अब फर्दर फिर से आप टेबल में देखो तो मिनिमम वेट एज कौन सा मेरे पास 8 एंड 8, दो चॉइसेस हैं मतलब कि सेम वेट आ रहा है.
तो उसमें से हम कोई से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूज किया है बी सी का वेट, ठीक है, वो एज चूज किया है और सी को हमने डिस्कवर कर लिया और वी में अब क्या कर दिया हमने, उसको अपडेट कर दिया। अब सी से फर्दर आप देखो कितनी एजेस आ रही हैं, सी आई, सी एफ एंड सी डी, ठीक है। और इनिशियली हमारे पास क्या था, ए एच की एज मौजूद है, राइट। अब टेबल में अपडेट जो हमारे पास एजेस जो हमने डिस्कवर करी हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, डी तक पहुंचने के लिए 7 की आ रही है, एफ तक पहुंचने के लिए 4 की हमारे पास आ रही है, एच तक पहुंचने के लिए 8 और आई तक पहुंचने के लिए वेट मेरे पास क्या आ रहा है कि 2, ठीक है। अब यहाँ से हम मिनिमम वेटेड एज हमारे पास कौन से है, 2, 8, 4, 7, इसमें से मिनिमम वेटेड जो की है मेरे पास 2 है। तो आई तक पहुंचने के लिए मेरे पास जो वेट आ रहा है वो 2 है, उसको हमने चूज किया है, आई को हमने डिस्कवर कर लिया और हमने अपडेट कर दिया अपने सेट को, राइट। फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब आई से फर्दर जो एजेस आ रही हैं वो कौन सी हैं, 7 एंड 6, राइट। तो आई से एच तक पहुंचने के लिए मेरे पास वेट था 7 और इनिशियल में आपने देखा था कि ए से एच तक पहुंचने के लिए वेट था मेरे पास 8। तो मिनिमम इसमें कौन सा है, 8 या 7, तो हम ऑब्वियसली 7 को चूज करेंगे और टेबल में अपडेट कर देंगे एच की को, ठीक है। और जी तक पहुंचने के लिए मिनिमम वेट मेरे पास क्या आ रहा है आई से, वो मेरे पास क्या है 6, राइट। और एफ तक पहुंचने के लिए मेरे पास वेट है 4, ओके। तो हम किसको चूज कर रहे हैं, एफ को, क्योंकि इनिशियल में मेरे पास कितना वेट लेस है, तो 4 मेरे पास मिनिमम वैल्यू थी, तो हम उस वाली एज को चूज करते हुए कौन से नोड तक पहुंचे हैं, एफ तक, एफ तक पहुंच गए हैं। अब फर्दर एफ से मेरे पास कितनी एजेस मौजूद है, 14, 10 एंड 2, राइट। 14, 10 एंड 2। अब जी तक पहुंचने के लिए ओवरऑल कॉस्ट मेरे पास क्या आ रही है, जी तक 2, डी तक पहुंचने के लिए 7, ई तक पहुंचने के लिए 10, ठीक है। अब अगेन टेबल में देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम वेटेड जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, इस केस में क्या है 2, राइट। जी को हम चूज करेंगे, डी तक पहुंच के 2 को हमने चूज कर लिया फर्दर सेट में, ठीक है। और फर्दर मेरे पास क्या होगा, जी को चूज करते हुए अब जी से फर्दर हमारे पास कौन सी है, जी आई एंड जी एच, एच तक पहुंचने के लिए अब मेरे पास वेट क्या आ रहा है 1। शुरू में आपने ये चीज नोट की थी, ए को चूज किया तो मिनिमम वेट क्या आ रहा था, एच की मेरे पास क्या थी 8। फिर हम बी तक पहुंचे, बी से एच तक पहुंचने के लिए मेरे पास वेट आया था 11, उसको हमने चूज नहीं किया, हमने 8 को ही रखा। फिर आगे हम मूव किए आई थे, आई पे पहुंचे तो एच का वेट मेरे पास क्या आ रहा था 7, राइट। फिर जी को हमने डिस्कवर किया तो अब मेरे पास वेट क्या आ रहा है एच का, एच तक पहुंचने के लिए 1, तो हमने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, राइट। मतलब कि हमने हर स्टेप पे हमने फाइंड किया कि कौन सा मिनिमम एज था उस तक पहुंचने के लिए, राइट। और टेबल में हम उसको अपडेट करते गए। अब जी हमने डिस्कवर कर लिया, अब जी से जो फर्दर जो एज जा रही है मिनिमम एज, टेबल में आपको देखो 7, 10 एंड 1, तो मिनिमम एज मेरे पास कौन सी है 1, तो हम किसको कंसिडर कर लेंगे, एच को, राइट। अब एच जो है मेरे टेबल में क्या हो गया, मेरे सेट में उसने एंट्री ले ली हुई है, राइट। अब फर्दर मेरे पास एजेस कितनी है, आपको देखो ए बी सी एफ जी आई एंड एच, ये सारे डिस्कवर हो गए हैं। अब फर्दर हमने किसको डिस्कवर करना है, डी एंड ई को, और डी और ई तक पहुंचने के लिए हमने मिनिमम एज फाइंड करनी है, वो चाहे जो से भी वर्टेक्स के साथ क्या है कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देखो सी डी की एज जो है वो क्या है 7, एफ डी तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या है 14, तो हम कौन सा मिनिमम वेट लेंगे, और 7 लेंगे। और हमें ये चीज हमारे टेबल में ऑलरेडी है कि 7 और 10 का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हम कौन सा लेंगे जो मिनिमम है, तो मिनिमम हमारे पास इस केस में क्या है 7, 7 को चूज कर लेंगे, डी डिस्कवर हो गया और डी को हमने क्या कर दिया सेट में एंटर कर दिया। अब डी से हमने ई को देखना है और एफ से ई को देखना है, और मिनिमम वेट हमने उसका उस एज का फाइंड करके उसको इंक्लूड कर लेना है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास मिनिमम वेटेड एज कौन सी है, 9 एंड 10, राइट।
तो हम कौन सी चूज करेंगे? ऑब्वियसली 9 को हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिए, क्योंकि की मेरे पास ई की पीछे क्या आ रही थी 10 10। अब डी जैसे डिस्कवर हुआ तो अब हमने उसको क्या कर दिया 9, क्योंकि ये मिनिमम वेटेड एज जो थी हमने डिस्कवर कर लिए और ई तक पहुंचने के लिए। तो हमने एंड में उसको क्या कर लिया, उसको इंक्लूड कर लिए। और यहाँ पे आप देखो कि वर्टिसेस में हमारे पास सारे जो सेट था वो इंक्लूड हो गया है, मतलब कि हमने सारे वर्टिसेस को डिस्कवर कर लिए। और दूसरा हमने क्या चीज देखनी थी कि जो एजेस है, नंबर ऑफ एजेस वो वन लेस हों फ्रॉम द वर्टिसेस। अब यहाँ पे आप खुद काउंट करो कितने हमारे पास एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं, सॉरी नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वर्टिस एजेस हमारे पास कितने हैं, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि हमने एमएसटी फाइंड कर ली है। और यहाँ पे मिनिमम वेट हमारे पास क्या आ रहा है, 37। ठीक है, सारे वेट्स को अगर आप सम करो तो हमारे पास वेट क्या आ रहा है, मिनिमम वेट 37। ओके, so the second algorithm we will be discussing is the Kruskal algorithm, and हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट कैसे है प्रिम से। प्रिम में आप देख लेते हैं कि हम ग्रो करते हैं फ्रॉम वन ट्री ऑल द टाइम। ठीक है, और उसमें ही एजेस क्या करते हैं, एड अप कर करके नोड्स को डिस्कवर करते हैं और फिर केमिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। क्रूस्कल में क्या है, मल्टीपल ट्रीज होंगे जिनको हम फॉरेस्ट भी कहते हैं, और उन मल्टीपल ट्रीज को वो एक टाइम पे मर्ज करेगा यूजिंग द सेफ एजेस। और एमएसटी का हमें ऑलरेडी पता है कि v-1 एजेस उसमें मौजूद होती हैं। सो आफ्टर v-1 मर्जेस वी वुड हैव ओनली वन कंपोनेंट एट द एंड। ठीक है, तो इसमें हम फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे और मल्टीपल ट्रीज को हमने मर्ज करना है किसी तरह। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम द वन ट्री इन प्रिम्स। So the algorithm is that we will start with each vertex being its own component. ठीक है, मतलब कि हर vertex को हमने एक अलग से tree consider करना है, repeatedly merge two components into one by choosing the light edge that connects them. ठीक है, अब यहाँ पे concept ये है कि same minimum edge find करनी है, मगर already यहाँ पे trees बने हुए हैं। ठीक है, अलग अलग से हमारे पास एक forest create हुआ हुआ है, तो हमने जो है edges को पहले डिस्कवर कर लेना है, उसका सेट पहले मेंटेन करना है और उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको स्कैन करना है। ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो एजेस होंगी वो सारी क्या होंगी, सेंडिंग ऑर्डर में मौजूद होंगी, उसमें से मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और उस एज को देखते रहेंगे कि क्या वो साइकिल क्रिएट कर रहा है कि नहीं, क्या वो उस एज को दूसरे नोड के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। और फिर हम उस डिसीजन की बेस पे हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे, मतलब कि उस ट्री को दूसरे ट्री के साथ मर्ज करते जाएंगे। ठीक है, अब सेम एग्जांपल को लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेम अनडायरेक्टेड ग्राफ है और पॉजिटिव वेटेड एजेस है। अब लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हो कि 1 2 4 6 7 8 9 10 11 14 ये सारे मेरे पास क्या है, वेट्स हैं, और उस वेट के अगेंस्ट जो मेरे पास एजेस हैं हमने उनको सॉर्ट करके रख लिया हुआ है। अब सॉर्ट करके हमने उसको क्या किया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर लिया। अब इनको स्कैन करेंगे। अब अपर राइट कॉर्नर में आप देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरे पास अलग अलग क्या है, ट्रीज है। अब इन सारे ट्रीज को हमने आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, हर ट्री में अभी मेरे पास एक ही नोड मौजूद है, इन ट्रीज को कनेक्ट करना है। अब पहले एज से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास पहले एज का वेट क्या है, 1, और वो क्या है, एच जी। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको हम कनेक्ट करते हैं कि नहीं। कनेक्शन करने के दो मेरे पास रूल्स है। पहला क्या है कि साइकिल्स क्रिएट ना हो, दूसरा कि वो दूसरे जो ऑलरेडी हमने डिस्कवर कर लिया है उसके साथ कनेक्ट ना हो, राइट, मतलब कि वो फिर साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो पहला एज हम देख लेते हैं, हम ऐड करेंगे कि नहीं। ऑफ कोर्स हम ऐड करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास साइकिल क्रिएट नहीं हुआ, तो मेरे पास मिनिमम वेटेड था, राइट। तो अब मेरे पास सेट क्या बन रहा है, जी एच, ये दो ट्रीज मैंने मर्ज कर ली हैं। अब बाकी जो मेरे पास ट्रीज हैं उनको भी मर्ज करेंगे, राइट। तो अभी मेरे पास एजेस का काउंट क्या हुआ है, 1। सेकंड वेटेड एज पे आते हैं, वो क्या है, 2, जिसमें मेरे पास सी आई है और जी एफ, राइट। सी आई को देख लेते हैं, सी आई को हम इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। अब मेरे पास सेट क्या बन रहा है,
GH जो पहले बना था और CI का सेट अलग से बन गया, राइट। मतलब कि मेरे पास अब दो जो सब ट्रीज थे उनको हमने मर्ज कर लिए, राइट। अगेन अब मेरे पास दूसरी एज कौन सी है, GF को हम इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास सेट क्या बन रहा है, GHF अलग से ट्री बना है, CI जो ऊपर ट्री बना था, ABDE ये अभी हमने इनको मर्ज करना आपस में। नेक्स्ट जो मेरे पास वेटेड जो एज आ रही है वो कौन सी है, 4, उसमें मेरे पास AB एंड CF है। AB को देख लेते हैं, AB को इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियसली ऐड कर लिया। तो अब मेरे पास सेट्स क्या बने हैं, GHF जो ऊपर बना था, CI और फिर अब AB को हमने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया, राइट। तो अभी मेरे पास टोटल एजेस कितनी है, 1 2 3 4, राइट। हमने कहाँ तक पहुंचना है, जितने मेरे पास वर्टिसेस हैं उससे लेस होनी चाहिए, ठीक, मतलब कि 8 एजेस इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे पास एज है वो कौन सी, CF, उसका वेट मेरे पास क्या है, 4, उसको इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि अभी साइकिल क्रिएट नहीं हुआ। तो मेरे पास सेट क्या भरा है, GHFCI, राइट, क्योंकि C के साथ कनेक्ट हुआ है तो वो उसके साथ इंक्लूड हो गया। तो आगे क्या है, AB और D और E अभी क्या है, 16 मेरे पास क्या है, ट्रीज है। नेक्स्ट जो मेरे पास मिनिमम वेटेड था वो मेरे पास क्या है, 6, ING, इसका हमने देखना है कि साइकिल क्रिएट होता है कि नहीं। अब आप खुद देखो कि पहले सेट में G और I ऑलरेडी मौजूद है, राइट। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि जब वो ऑलरेडी सेट में मौजूद होगा उसका मतलब क्या है कि साइकिल क्रिएट हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, राइट, बेशक कि वो मिनिमम वेटेड था। नेक्स्ट जो मिनिमम वेटेड मेरे पास क्या है, 7, उसमें मेरे पास एजेस कौन सी, CD एंड IH, राइट। CD को देखते हैं, CD ऑलरेडी मौजूद है, नहीं है, अब वो मेरे क्या हो गया, सेट में इंक्लूड हो गया। अब मेरे पास सेट क्या है, GHFCID, नेक्स्ट सेट क्या है, AB एंड लास्ट में सोलो सेट कौन सा है, E, राइट। अब ये सारे सब ट्रीज हैं, अब उसमें इनको सब हम देखो, आपको देखो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल ट्री में फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एज है मेरे पास क्या है, IH ऑलरेडी आप देख रहे हो कि पहले सेट में मौजूद है। IH को इंक्लूड करेंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है, साइकिल। आप खुद ग्राफ में देख लो, तो IH को इंक्लूड करें तो मेरे पास क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर, राइट। नेक्स्ट एज मेरे पास कौन सा है, 8 है वेट उसका, AH एंड BC। AH को देख लेते हैं, A एंड H ये दोनों अलग सेट में हैं तो हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब पूरा सेट मेरे पास क्या बन रहा है, GHFCI DAB, ये अलग से ट्री बन गया है, और E भी अभी तक क्या है, अभी हमने डिस्कवर नहीं किया उस तक पहुंचने के लिए एज। नेक्स्ट एज मेरे पास कौन सी है, BC। BC को देखते हैं, तो BC के पहले सेट में आप देखो वो ऑलरेडी मौजूद है। अब ट्री में आप देखो तो BC को कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है, साइकिल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इग्नोर। नेक्स्ट मेरे पास मिनिमम वेटेड एज कौन सी, 9। 9 में हम देखते हैं DE का कनेक्शन देखते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा था। और एट द एंड आप देखो जैसे ही सारे वर्टिसेस हमने उस सिंगल ट्री में हमने उसको मर्ज कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अब आप खुद काउंट करो कि हमने कितनी एजेस ऐड की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एजेस मेरे पास आ गई 8, वर्टिसेस मेरे पास कितने आ गए हैं, 9। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, क्रिस्टल का टर्मिनेट हो जाएगा, right? Easy enough. So both the algorithms are the greedy algorithms. और greedy का मैंने already mention किया है कि as the name suggests, it always tries to make the choice that seems to be the best at the moment. ठीक है? This means that it makes a locally optimal choice in the hope that this choice will lead to globally optimal solution. ठीक है? और यही इसका एंड प्रोडक्ट हो सके, ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन वो फाइंड कर लेता है। इस केस में हमारे पास क्या थे, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। सो विल नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन विद डायरेक्टेड ग्राफ। सो टेक केयर, थैंक यू।